joined us today for this session. I'm your mentor, Myra Qureshi, and the course which I teach is English Language and Grammar Mastery. Today is your introductory session, so it means that we are going to understand the entire course outline of our course. Along with it, there are certain small topics जो हम आज discuss करेंगे. I will be using bilingual language, Urdu plus English, so that हम ज़्यादा clarity के साथ चीज़ों को discuss कर सकें, समझ सकें और सीख सकें. So let's get started. ये पूरा कोर्स आउटलाइन आपका 15 सेशंस पर मुश्तमिल है which is a sort of a combination of grammatical topics and strategies जो आपको हेल्प कर सकती हैं clearly, structurally, fluently बात करने में. So let's explore it together. Are you all ready? Brilliant. Let's get started. So your session number 1 will be on grammar for speaking, which is a mindset shift. So basically आपकी बहुत सारी confusions होती हैं related to grammar versus spoken grammar के बीच के फर्क को समझने की निस्बत से you don't understand वो वाला grammar जो हम written में use करते हैं उसका usage और उसका relevance with the kind of the grammar we use to speak in English. So उनको हम differentiate करेंगे कुछ drills और कुछ activities की मदद से. The second session of yours will be consisting on this topic called review of the core sentence structure. यहाँ पे हम अपने sentence में जो गलतियाँ करते हैं while we are speaking or while we are writing even, तो वो जो गलतियाँ mistakes हम करते हैं, we are gonna understand them and we will try to use English in a proper context. Session number 3 will be related to present tenses. हम उसका usage पढ़ेंगे communicative grammar structure के तहत. हम rules को understand नहीं करेंगे. Then we will continue that and we'll go for past tenses, present perfect tenses, future forms, and then modal verbs for confidence and politeness. Then we will be having conditionals. Thinking in English like zero and first conditional sentences जब हम बनाते हैं तो how in grammatical topics को हम कैसे अपनी spoken में include कर सकते हैं. We are going to understand that. In session number 9, we will be understanding the second conditional, जिसके through हम अपनी opinions बना सकते हैं. Like when we are speaking, we have to give our opinions. We have to say sentences जो हमारी imaginations को, हमारी opinions को लोगों के सामने show कर सके या वो उनको listen करें. So we are gonna understand that also. इसका entire structure क्या है, बोलना कैसे है, usage क्या है, इसको हम understand करेंगे. पैसिव वॉइस प्रोफेशनल इंग्लिश में यूज होती है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस मेकिंग क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, प्रैक्टिकल ड्रिल्स की मदद से सीखेंगे. देन रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जेशंस के लिए रिलेटिव क्लॉजेस फॉर फ्लुएंसी, लिंकिंग वर्ड्स एंड स्पोकन कनेक्टर्स. ये तीनों टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू डिस्क्राइब थिंग्स, टू ऐड डिटेल्स इन योर कॉन्टेक्स्ट, टू ऐड डिटेल्स टू व्हाटएवर यू आर सेइंग. So we are going to explore these topics together. Then we have again spoken versus written grammar. एक छोटी सी ellipses, short answers किस तरह से देने हैं, interviews में जब आपसे questions पूछे जाते हैं तो हम उनको कैसे address कर सकते हैं, कैसे answer कर सकते हैं. We are going to understand that. And then grammar in real life speaking. हमारी final practice इसके ऊपर base करेगी जिसमें आपकी role play activities, group discussions और presentations रखी जाएंगी. The next part यानी आपका हर लेक्चर 20 + 20 40 मिनट्स का होता है. सो द इन एवरी लेक्चर ऑफ योर्स जो आखिरी के 40 मिनट हैं उसमें हम किसी एक स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करेंगे. ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी इफेक्टिवली बात करने में, अपनी टॉक को स्ट्रक्चर करने में, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू आउट इन थिंकिंग इन इंग्लिश. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम आल्सो. सो ये सीरीज ऑफ टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं जिनको हमने 1 by 1 स्टडी करना है, जिसमें इंक्लूड होती है हमारी फोर्ड टेक्निक, 3-to-1-4 टेक्निक, जो हमें हेल्प करती है इन इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स टू एनवायरनमेंट्स, टू नेटवर्क्स एंड ड्यूरिंग इंटरव्यूज. देन वी हैव पॉइंट डिटेल इम्पैक्ट. अगेन जब हमें अपनी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या खुद अपनी अपनी पर्सनैलिटी को भी हमें जब एक्सप्लेन करना होता है तो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो हम यूज कर सकते हैं टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर आवर टॉक. Then we have past, present and future, 3-to-1. In this strategy हम लोग अपने learning goals के बारे में लोगों से communicate कर सकते हैं. ये strategy हमें ये समझने में, ये बोलने में help करती है. Then we have prep and claim reason example, जिसमें आपको help किया जाता है या ये strategy आपको help करती है when you have to express your opinions on everyday topics.
Similarly, we have STAR technique, we have problem solution, peel technique, we have prep technique, and we have number of other techniques like 3 to 1, AIDA and preps. ये तमाम की तमाम टेक्निक्स हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको हेल्प कर सकती हैं टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर योर टॉक, टू स्पीक with clarity, with confidence, and with fluency. सो हमारे हर लेक्चर को हमने डिवाइड किया हुआ है इनटू ग्रामर एंड इनटू द स्पोकन। सो वो तमाम प्रैक्टिसेस आपकी ग्रामर को भी करेक्ट करेंगे, एंड ये प्रैक्टिसेस आपकी टॉक को स्ट्रक्चर करने में भी हेल्प करेंगे। सो दिस इज व्हाट आवर इंटायर कोर्स लाइन इज बेस्ड अपॉन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अभी तक मैंने आप सबसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं लिया। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज going to solve this or going to answer this question. इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद एज एन एक्टिविटी, एज एन असाइनमेंट, आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। फर्स्ट मत सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक सो फार वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा हर क्लास यानी 15 सेशंस पर मुश्तमिल हमारा ये कोर्स डिवाइडेड है इनटू 2 थिंग्स। पहले 20 मिनट में हम लोग ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे और आखिरी के 20 मिनट में हमने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करनी है जो आपको क्लियरली बात करने में हेल्प कर सकती है, इंटरव्यूज देने में हेल्प कर सकती है, क्वेश्चन के आंसर देने में और अपने आप को, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकती है। सो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम इंशाल्लाह हर क्लास में इन द लास्ट 20 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे। आपके माइक्स ओपन किए जाएंगे और आप इंटरेक्टिवली हमसे कनेक्ट होकर बात करके अपनी स्पोकन इंप्रूव कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट impressions, your first impressions. Understand this one thing, my dear students, that whenever you go somewhere, आप कहीं पर भी जाते हैं, you are judged by the impression you create. So आपसे मिलने वाले लोग आपको पहले 7 से 10 सेकंड्स में जज करते हैं। 55% वो जज करते हैं आपको थ्रू द बॉडी लैंग्वेज एंड थ्रू द अपेयरेंस। सो मेक श्योर कि आपकी अपेयरेंस हमेशा अच्छी हो। इट शुड बी डिसेंट, ठीक है? सो योर बॉडी लैंग्वेज, योर अपेयरेंस शुड शो डिसेंसी। 38% वो आपको आपकी वॉइस से जज करते हैं, द टोन, द क्लैरिटी एंड द स्पीड जिसके साथ आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, वो आपको उससे जज करते हैं। एंड 7% दे जज यू बाय व्हाट यू टॉकिंग, द एक्चुअल वर्ड्स दैट यू स्पीक। इट मीन्स कि हमें कोई हैवी वोकैबुलरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत मुश्किल इंग्लिश के अल्फाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लियर बात करने की ज़रूरत है, हमें अपनी टोन पे काम करना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। टुडे वी विल ट्राई टू मास्टर दैट 38% ऑफ योर इम्प्रेशन। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे बताइए, कोई भी इंट्रोडक्शन मेमोरेबल क्यों बनता है? जब भी कोई आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है तो कैसे आप उसको याद रखते हैं? कोई भी इंट्रोडक्शन मेमोरेबल कैसे होता है? आप लोगों को क्यों याद रखते हैं? बाय द सेंटेंसेस दे यूज, बाय द अपीयरेंस दे हैव, जिस तरह से उन्होंने बात की या जो बात की। वेरी गुड, द काइंड ऑफ द टॉक, जो इंटरेस्टिंग बात, हमें अभी एमनीजिया ने कहा कि जो बात वो हमसे करते हैं। एग्जैक्टली, यस। मुझे बताइए कि जब प्रोफेशनल ऐसा क्या अलग करते हैं जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जो हम उनको याद रखते हैं? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे डू डिफरेंटली? एक एवरेज स्पीकर और एक प्रोफेशनल स्पीकर। वेरी गुड, द वे, अंदाज, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका हम्बल होना, किस तरीके से वो आम लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं फौरन, उनका बिहेवियर। परफेक्ट, परफेक्ट। सो इन तमाम चीज़ों को मास्टर करने के लिए जिस फॉर्मूला को आज हम सीखने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड नाइस फॉर्मूला। व्हाट इज इट कॉल्ड? नाइस फॉर्मूला। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक पावरफुल फॉर्मूला है जो हम कहीं पर भी, चाहे मीटिंग्स हो, इंटरव्यू हो, नेटवर्किंग इवेंट हो, हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं वाइल वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ। और थोड़ी देर तक आप लोग भी इसी फॉर्मूला का यूज़ करके खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले N, it stands for name. सो सबसे पहले आपने हाय हेलो के बाद अपना नेम बताना है, वेरी स्लोली, क्लियरली प्रोनाउंस्ड, लाइक बहुत लाउड होके नहीं बोलना, एक अच्छे टोन के साथ आराम आराम से
क्लियरली और अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ यू हैव टू स्टेट योर नेम. हाय, हेलो और गुड मॉर्निंग. माय नेम इज Arifa, for example. In the next sentence, you have to tell about your identity. आपका क्लास, आपका जॉब टाइटल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त है. सो आफ्टर द ग्रीटिंग एंड आफ्टर द नेम आपने अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड बात करनी है. तो आपका जॉब टाइटल क्या है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आमिना and I work as a marketing expert in XYZ company. ठीक है, so this is a nice and very short and nice and impressive way to introduce yourself. In the next sentence हमने context बताना है, वैल्यू बतानी है. वैल्यू क्या होती है? जो आपको किसी और शख्स से अलग कर रही होती है. तो एक इम्प्रेसिव फैक्ट अपने बारे में आप स्टेट करते हैं. ठीक है, सो आई वर्क as a marketing expert in XYZ company, and last year I was the reason why our department, our company was able to boost sales by 45%. सो वो वैल्यू जो आपने ऐड की है किसी जगह पे, आपने कोई अचीव किया है किसी चीज़ को, कोई आपके बारे में इम्प्रेसिव फैक्ट क्या है, आप उसको स्टेट करते हैं आफ्टर योर आइडेंटिटी. देन लास्टली आप इंगेज करते हैं. आखिरी में आखिरी सेंटेंस जो आपके इंट्रोडक्शन का होना चाहिए वो कोई सवाल हो सकता है, और वो किसी को कन्वर्जेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, या आप स्ट्रांगली थैंक यू कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी एन सैम्पल ऑफ इट. हाय एवरीवन, माय नेम इज आयशा. ओके, माय नेम इज आयशा Ali, and I'm a senior data analyst at Green Tech Solutions. Last quarter, I built a dashboard that saved our team 15 hours weekly. What is the biggest time saving tool your team uses? बहुत interactive way है to introduce yourself. So, firstly, greetings, then her name. Name के बाद क्या आया? NI, identity. कहाँ काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं. देन आया C, विच इज़ द कॉन्टेक्स्ट, यानी जो वैल्यू उन्होंने पुट किया, जो वैल्यू उन्होंने दिया, या जो उनका वैल्यू है उस जगह पे, जो इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट किया, अचीवमेंट. एंड देन E, इंगेजमेंट, impressive question, anything, invite someone, right? So NICE, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो you can say strongly thank you for having me here, and that's it. ठीक है, so this is how you use nice formula to introduce yourself. रिवाइज करते हैं. N stands for name, I stands for identity, C stands for context, and E stands for engage. सबसे पहले आपने greetings, hi, hello, अस्सलाम वालेकुम, good morning, good evening. Then you have to write down, or you have to say your name आराम से, slowly, clearly pronounced. Then आइडेंटिटी, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, यू हैव टू स्टेट दैट. देन आपका कॉन्टेक्स्ट, आप कहाँ काम करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अपने बारे में कोई अचीवमेंट ऐड करें. एंड देन इनवाइट देम, कोई क्वेश्चन पूछें उनसे, कोई क्वेश्चन करें उनसे, या फिर आप उनको स्ट्रांगली नाइसली थैंक यू कह सकते हैं, और उनको थैंक यू कर सकते हैं फॉर द फैक्ट दैट दे हैव अलाउड यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू देम. सम स्ट्रॉन्ग एंड द वीक वर्जन्स आर देयर, और उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे. सो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है. एक वीक वर्जन क्या होगा? हाय, आई एम अहमद. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वर्जन क्या होगा? गुड मॉर्निंग, आई एम अहमद खलील. आई एम अ रीजनल सेल्स मैनेजर एट नोवाटेक एंड आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर पार्टनरशिप आइडियाज टुडे. किसी और को इंट्रोड्यूस करना है, दिस इज लीसा. एक बहुत ही वीक वर्जन है, बट स्ट्रांगली हम कैसे कह सकते हैं? लेट मी इंट्रोड्यूस लीसा शन, हेड ऑफ प्रोडक्ट, रिसेंटली लॉन्च एन ऐप विद 1 मिलियन डाउनलोड्स इन 60 डेज. यहाँ पे भी नाइस फॉर्मूला ऐड हो रहा है. नेम, आइडेंटिटी, वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट, एंड देन थैंक यू. 30 सेकेंड पिच, अगर आप किसी को कुछ बिजनेस आइडिया पिच करना चाहते हैं. नेम, आई एम Diago, work director at Sky Retail, helping e-commerce stores double conversions with AI. What's your biggest marketing challenge this year? So nice formula can be used anywhere and everywhere to introduce yourself. Now let's have some chit chat. I want you people to introduce yourself to me. मैं आप सबके साथ nice template share कर रही हूँ. आपने इसमें edit करना है और अपने आप को introduce करना है. So let me share it with all of you first. And then I'm going to give you 30 seconds
to introduce yourself to me. सबसे पहले greetings, then write down your name, then I, the identity you have, then context, and then E, engagement. I'm waiting for all of you. 30 seconds है आप सबके पास खुद को introduce करने के लिए. And your time starts now. Hurry up, everyone. Very well done. That's cool. Good job, everyone. Well done. Let's move on to our next topic now, which is understanding, like the the different kind of conflicts we have between written and the spoken English. So वो दोनों आपस में किस तरीके से different है इस चीज को understand करते हैं. Mostly what happens is कि हम written grammar में हमेशा rules पर focus करते हैं. ठीक है? What we focus upon is rules. हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम रूल्स की मुनासबत से बात करें, रूल्स को फॉलो करते हुए बात करें. हम ये भूल जाते हैं कि स्पोकन ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है वो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ है, कि कितना क्लियर आप बोल रहे हैं, कितना ईजिली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ों को. सो दिस इज द रीजन वाई ग्रामर में जो रिटन वाली ग्रामर है उसमें डिटेल्स ज़्यादा हैं सेंटेंसेस में. हर एक हेल्पिंग वर्ब इंक्लूडेड है, हर चीज़ एक प्रॉपर रूल्स के मुताबिक से है. बट इन स्पोकन इंग्लिश वी डोंट you know we don't bother these things. Spoken English fast hai because we are focusing only upon the ideas and how clearly we want to tell people about the message जो हम उनको convey करना चाहते हैं. ठीक है? So there is a very simple formula which we follow. The formula is सबसे पहले आपका बेस आइडिया. बेस आइडिया क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं काम करता हूँ या मैं काम करती हूँ. आई वर्क. ठीक है? आई वर्क. एग्जैक्टली. देन हम इसमें बेस आइडिया के साथ ऐड कर देते हैं कुछ डिटेल्स को. वी ऐड सम डिटेल्स टू इट. एंड इन दिस मैनर हम अपनी टॉक को मजीद एफिशिएंटली स्ट्रक्चर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन अ मार्केटिंग एजेंसी. ठीक है? आई वर्क इन अ मार्केटिंग एजेंसी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने किसी रूल को, किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया. हमने यहाँ पे मेक श्योर किया कि हम एक फॉर्मूला के तहत अपनी बात करें, विच इज योर बेस आइडिया, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स. एंड दैट्स इट. ये एक डिफरेंस है बिटवीन द ग्रामर ऑफ द रिटन इंग्लिश एंड द ग्रामर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश. नेटिव पीपल या वो लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं, जिनकी ज़बान इंग्लिश है, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि रूल किस तरह से फॉलो हो रहे हैं. दे ओनली फोकस अपॉन कि उनकी बात ठीक तरीके से कन्वे हो रही है. दैट्स द रीज़न उनके सेंटेंसेस शॉर्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, फास्ट होते हैं, और वो प्रॉपरली अपनी बात करके कम्युनिकेट करके दे कैन गो अलॉन्ग. सो दिस इज द बेसिकली वन थिंग. एक माइंडसेट शिफ्ट जो हम आज की क्लास में लेकर जा रहे हैं अपने साथ, वो ये है कि हमने स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करना है. हमें एक बेस आइडिया पता होना चाहिए और उसमें डिटेल्स कैसे ऐड करनी है हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है? लेट्स सी योर इंट्रोडक्शंस नाउ. Very good. So we have a lot of introductions here. Zahir Khan, owner of two schools, aim is to give the real excellent education by making innovations. Very good. Yes, I do think you're doing great. Base idea क्या है? Let me explain it to all of you.
Thank you so much, Aksa, for your responses. Qasim, Ariba, Mrs. Faisal, all of you, thank you very much for the introductions which you guys have given to me. Okay, let me explain बेस आइडिया क्या है. बेस आइडिया वो एक चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिलने जाते हैं, आप कहीं इंटरव्यू पे मौजूद हैं, आप किसी नेटवर्किंग जगह पर मौजूद हैं, तो वो एक आइडिया जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो ये बताना हो कि आप काम क्या करते हैं या आप क्या स्किल सेट है आपका, आप उस बेस आइडिया को सिर्फ अपने सामने जहन में रखते हैं, एंड देन वाइल यू आर स्पीकिंग आप उसमें डिटेल्स ऐड करते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन अ मार्केटिंग एजेंसी. क्या करते हैं मार्केटिंग एजेंसी में, अब उसकी डिटेल ऐड करें. आई हैंडल द स्ट्रैटेजीज, आई रन एड्स, ठीक है, आई हेल्प माई कंपनी इन बूस्टिंग सेल्स. सो आप आइडियाज ग्रेजुअली शेयर करते ऐड करते जाएंगे विदाउट फेयरिंग ऑफ द फैक्ट कि आप यहाँ पे कोई रूल्स की मिस्टेक कर रहे हैं. दैट्स द वन बेसिक थिंग जो हमने आज से शुरू करनी है. डू यू अग्री विद दैट? कि आप सिर्फ एक बेस आइडिया को माइंड में रख के उसमें डिटेल्स ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं while यू आर स्पीकिंग? देन दिस कोर्स इज फॉर ऑल ऑफ यू. Yes? Raise your hands. Perfect. Well done. Raise your hands, everyone. I'm waiting. Okay. So let's have this base idea. इस एक फॉर्मूला को यूज करते हुए लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन. सबसे पहले टॉक अबाउट द मेन आइडिया. चलिए मैं आपको कंफ्यूज ना हूं तो आई एम चेंजिंग इट्स नेम टू मेन आइडिया, एंड देन ग्रेजुअली डिटेल्स while you are talking. ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मुझे बताएं आज why are you joining this course? So you have to tell me the answer of this one question इस फॉर्मूला को यूज करते हुए. I'm waiting for all of you, everyone. We have 1 minute. Hurry up. Every student of the class. It's okay. Very good. Well done. Thank you for sharing. To improve your speaking, उसमें details add करें. You're here to improve your speaking. How would you do that? क्या आप activities follow करेंगे? क्या आप grammar पर focus करेंगे? क्या आप test sessions पे focus करेंगे? What is it that you would do to improve your spoken English? Because you're here to speak in English clearly and confidently. Try to add details into your talk. Hurry up, everyone. We have 1 more minute. To improve your speaking, very good. To master the skills of communication that can help me grab more clients in international market. Well done, Anika. Good job. Okay, let's move on to our last topic of today's class, which is about pronunciation, because pronunciation, the style which with you talk, is very, very important to master. So let's get started. वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले, बिजनेस इंग्लिश में स्ट्रेस क्यों ज़रूरी है? स्ट्रेस देना इज़ एन आर्ट जिसमें आप कोई भी बात कर रहे हो, आप प्रॉपर उन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देकर बोलते हैं ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों, आप पर फोकस करें, आप पर उनका अटेंशन शिफ्ट हो जाए, एंड आप जो भी उनसे कहना चाह रहे हैं वो आप एम्फेसिस के साथ कम्युनिकेट कर सकें. रूल नंबर 1, अगर आपके सामने 2 syllabic वर्ड हैं, ठीक है, लाइक 2 syllabic वर्ड्स, सेलेबल्स क्या होते हैं? साउंड वाइज डिविजन ऑफ अ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, कितनी दफा आप किसी भी वर्ड को बोलते हुए पॉज लेते हैं, वो आपका साउंड सेलेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, सो मैं 2 to 3 times ब्रेक ले रही हूँ साउंड वाइज. मेरा जो है वो साउंड का एक पॉज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेलेबल. सो अगर आप कोई वर्ड बोलते हैं और मिसाल के तौर पर वो 2 syllables पर मुश्तमिल है और आपका वो वर्ड किसी शख्स का नाम है, किसी चीज का नाम है, इट इज अ नाउन, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट पे जो पहला सेलेबल है आपने उसको स्ट्रेस देकर बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट.
प्रोजेक्ट में आप प्रो को स्ट्रेस देकर बोलेंगे. वाई? बिकॉज इट इज अ नाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ नेम ऑफ अ सिटी, इस्लामाबाद. सो यू वुड से इस्लामा एंड देन आबाद. इस्लामा को आपने जरा ज्यादा स्ट्रेस देके बोलना है, बाद को आपने थोड़ा लेस स्ट्रेस देके बोलना है, अनस्ट्रेस रखना है. सो द फर्स्ट रूल इज, if a word is two syllabic and it's a noun, always put stress on the first syllable. ठीक है? Is it clear? Give me a yes. Is it clear? Yes. So if you're saying something, अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, यस, अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं और वो नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तो आपने पहले सेलेबल को जरा स्ट्रेस देकर बोलना है और उसके बाद वाले सेलेबल को अनस्ट्रेस्ड रहने देना है. दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज स्पीकर. सो ये एक वन रूल आपने आज याद रखना है. द सेकेंड रूल इज अबाउट द वर्ब्स. लेट्स सपोज आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो एक एक्शन वर्ड है. ठीक है. सो यू हैव टू गिव द सेलेबल ऑन द लास्ट वर्ड. जैसे जो दूसरा सेलेबल आएगा, लास्ट सेलेबल आएगा, आपने उसको स्ट्रेस देना. सो द रूल नंबर 2 इज, if the word you are speaking is a verb, stress upon the second syllable. ठीक है. For example, if it is drinking, if it is driving, if it is eating, if it is taking feedback. So आपने last syllable को taking, deciding, आपने last syllable को ज्यादा stress देकर बोलना. ठीक है. So this is the second rule that you have to remember. क्या ये दो rules आपको याद रहेंगे? Yes. यस, ग्रेट. ये तमाम रिसोर्सेज, नोट्स, बुक्स आप सबके साथ शेयर कर दी जाएंगी ऑन द फेसबुक, सॉरी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ LWE जो आपके बनाएंगे हर क्लास का, हर बैच का. लास्ट रूल आज का, सेंटेंस ट्रस्ट. हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें दो तरह के लफ्ज आते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंटेंट वर्ड एंड द अदर वर्ड इज कॉल्ड फंक्शनल वर्ड. कंटेंट वर्ड आपके होते हैं नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक दफा जरूर रिवाइज करेंगे, एजेक्टिव्स. ठीक है. एंड फंक्शन वर्ड्स होते हैं आपके कंजक्शंस एंड प्रेपोजिशंस. ठीक है. अगर आपके सेंटेंस में नेम ऑफ अ पर्सन है या जो एक्शन वो पर्सन करता है, कोई एडवर्ब है, कोई एजेक्टिव है, तो आपने उनको स्ट्रेस देना है. ठीक है. लेकिन वर्ड्स लाइक ऑफ, बट, इन, द, आर्टिकल्स जो होते हैं, इनको आपने स्ट्रेस नहीं देना. ठीक है. सो जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और बोल्ड कर रही हूँ, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एजेक्टिव्स, इनको आपने स्ट्रेस देना है. एंड कंजक्शंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, इनको आपने स्ट्रेस नहीं देना. ठीक है. इज इट क्लियर? सो ये तीन रूल्स आपने याद रखने हैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड. एंड इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम मजीद इनको डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे. सो आज पूरी क्लास में हमने जिन जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया उनको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और फिर आज के असाइनमेंट्स की तरफ मूव करेंगे. हमारी आज की क्लास में हमने अपने 15 सेशंस पर मुश्तमिल इस कोर्स में जो चैप्टर्स हैं, जो सेशंस हैं, उनको डिस्कस किया. हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि अगले 1.5 माह तक आप लोग जब कनेक्टेड हैं इस कोर्स में, तो आपके कोर्स की जूम क्लासेस 40 मिनट पर मुश्तमिल होंगी, जिसके फर्स्ट 20 मिनट्स आप ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट 20 मिनट्स आपके माइक्स ओपन किए जाएंगे, आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, उसके तहत आपको टॉपिक दिए जाएंगे और आप उन पर अपनी ओपिनियंस देंगे हमें. उसी वक्त रिसर्च भी कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं. सो दिस वाज रियली रियली गोना हेल्प यू आउट टू रिमूव योर हेजिटेशंस. तमाम लिस्ट इस टॉपिक्स में मौजूद, इस नोट्स में मौजूद हैं. देन वी हैव अंडरस्टैंड अ वेरी गुड फॉर्मूला जिसका नाम है NICE, नाइस, जो हमें हेल्प करता है प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन देने में. हमने उसको प्रैक्टिस भी किया इन द जूम चैट सेशंस. देन वी हैव अंडरस्टूड 3 रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो हमें
स्ट्रेस डेवलप करने में हेल्प करते हैं। So, अगर आपका नाउन है तो आपने फर्स्ट सेलेबल पे स्ट्रेस देना है, वर्ब है तो नेक्स्ट सेलेबल, लास्ट सेलेबल पे स्ट्रेस देना है। कंटेंट और फंक्शनल वर्ड्स को सामने रखते हुए नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स को आपने स्ट्रेस देना है, जबकि आर्टिकल्स, कंजक्शंस और prepositions पर स्ट्रेस नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू इंक्रीज our market share by 20% this quarter। अब यहाँ पे स्ट्रेस अनस्ट्रेस इस रिदम को फॉलो करते हुए आई कैन स्पीक लाइक अ पर्सन जो बहुत ही एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट। आज के होमवर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एज एन होमवर्क आप सब ने एक रिटन इंट्रोडक्शन लिखना है, 8 लाइन्स पर मुश्तमिल, जिसमें आप नाइस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, 48 आवर्स के अंदर आप लोग इस असाइनमेंट को हम सबके साथ शेयर करेंगे। ये आपका टास्क नंबर 1 है। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में भी इसको अपडेट कर रही हूँ। टास्क 2 इज रिलेटेड टू द वीडियो इंट्रोडक्शन। 60 to 75 सेकेंड्स की आपने एक ऑडियो या वीडियो इंट्रोडक्शन की रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE, जहां पे आपने नाइस फॉर्मूला को यूज करना है। इमेजिन करना है एज इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो अपने आप को वहां इमेजिन करें, ऑडियंस को इमेजिन करें और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें। सो दिस इज योर टास्क नंबर 2। ये भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप सबको टास्क की लिस्ट दिखाई दे रही है तो, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज टेक द स्क्रीनशॉट। पार्ट बी हमारा वर्ड स्ट्रेस मास्टरी पर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने स्ट्रेस देना है। उनको पहले आइडेंटिफाई करें, नाउन है, वर्ब है, कौन सा सेलेबल है, हमें कहाँ स्ट्रेस देना है। उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करें और हमारे साथ शेयर करें ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE। ठीक है, देन वी हैव दिस। सो यू हैव टू टेल मी, you have to like at least say 15 sentences about a topic, things I love about my country. So you have to say at least 15 things जो आपको अपनी कंट्री पाकिस्तान के बारे में पसंद है, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में बोलें और मेरे साथ शेयर करें ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।